والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج ذہنی آزمائش کی چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ 3 ٹیمیں آگے بڑھ چکی ہیں اور جو 3 ٹیمیں پیچھے رہ گئی تھیں وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے بیٹھنے کی ترتیب بھی کچھ تبدیل کی گئی ہے، کچھ نئی سٹنگ ارینجمنٹ کی گئی ہے۔ آج 2 ٹیموں کے درمیان نہیں 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ اس کا مطلب شاندار اور بڑا دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ آج کی ان تینوں ٹیموں کے پاس یہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کا لاسٹ موقع ہے۔ آج 2 ٹیموں کا سفر اختتام پذیر ہوگا اور ان تینوں میں سے ایک ٹیم نے آگے جانا ہے۔ آپ بھی غور کیجئے، واربرٹن، گجرانوالا یا شکارپور، کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے اور کون سی 2 ٹیمیں آج پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے، ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کی کالز بھی ڈسپلے کریں گے، آن ایئر کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ سے جو سوال پوچھے گئے اس کا جواب بھی دیں گے اور نئے سوالات بھی پوچھیں گے۔ تو تیار ہو جائیں، آئیے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے چوتھے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے مقابلے کی معاملات کو آگے لے کر چلیں، وقت ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں جو کل مقابلہ ہوا تھا، تیسرا مقابلہ ذہنی آزمائش کا شکارپور اور بھاولپور کے درمیان۔ کیسا مقابلہ رہا، کون آگے رہا، کون پیچھے رہ گیا اور کیسے پیچھے رہ گیا، آئیے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، آج تیسرا سلسلہ ہے تقویٰ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام مناوی جامع الصغیر کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی 3 اقسام ہیں۔ نفس کو کفر سے بچانا، یہ عوام کا تقویٰ ہے، نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ خاص کا تقویٰ ہے، اور نفس کو ما سوی اللہ عز و جل سے بچانا، یہ خاص الخاص لوگوں کا تقویٰ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نزول فرمائیں گے۔ صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے۔ غلط۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ دوزخ کے 8 دروازے ہیں۔ غلط۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ غلط۔ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اللہ، بھاولپور کے کسی اسلامی بھائی نے پورے پروگرام میں کوئی غلطی نہیں کی۔ 51 نمبر کے سوال تھے ہمارے پاس، پورے 51 نمبر حاصل کر لیے ہیں صرف ایک غلطی کی وجہ سے، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کل کا مقابلہ صرف 1 نمبر کے فرق سے بھاولپور والے جیت گئے، اور ہمارے پاس آج شکارپور کی ٹیم موجود ہے۔ ٹیم بڑی کمال کی ہے، مگر سچ بتاؤں یہ تینوں ٹیمیں ہی بڑے کمال کی ہیں، 1-2 نمبر کے فرق سے پیچھے رہے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آخری موقع ہو تو پھر بندہ تیاری کیسے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ زبردست تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ ہاں، میں ان تینوں ٹیموں کو ایک بات ضرور بتا دوں کہ اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش بھی تھوڑی ہے، کیونکہ کچھ سوالات ہم نے کم کیے ہیں، تو جب سوالات کم ہوتے ہیں تو پھر چانس آف مسٹیک پھر نہ ہونے کے برابر رہتا ہے۔ دائیں طرف میرے گجرانوالا والے ہیں، اپنے نام بتائیں گے اور کیا مصروفیات ہیں یہ بتائیں گے۔ میرا نام علی رضا اتاری ہے، میرے والد محترم کا نام ریاست علی ہے۔ میں بیسیکلی ضلع سیالکوٹ کے گاؤں سترا سندواں سے، اور میرا سلیکشن گجرانوالا ٹیم میں ہوا۔ جی، میرا نام محمد مجتبہ بن محمد الیاس حسینی ہے، میں جامعۃ المدینہ تارامالا گلا میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اسد بن نظر حسین، بیسیکلی میرا تعلق ضلع رحمیر خان سے ہے، میں جامعۃ المصطفیٰ گجرانوالا میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں درجہ ثانویہ میں۔
माशाल्लाह, गुजरांवाला वालों को मरहबा कहते हैं। मेरी बाईं तरफ वॉरबर्टन के इस्लामी भाई हैं जिन्होंने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया है। नॉर्मली तो मैं वहां बैठता हूं, आज वॉरबर्टन वालों को हमारी मजलिस ने बिठाया है। जी जनाब, अपना तारुफ भी कराएंगे, अपना शोबा भी बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद तलहा तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम सनाउल्लाह आकिफ है। मैं बेसिकली पाक गार्डन कॉलेज ननकाना साहब में एफएससी प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा तारी, वालिद साहिब का नाम मोहम्मद अहमद रज़ा तारी है। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से है और मैं दरस निज़ामी में 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है। मेरे वालिद साहिब का नाम अब्दुल खालिक है। मैं जामियातुल मदीना बुच्चेकी का तालिब इल्म हूँ और दर्जा सालिसा यानी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, वॉरबर्टन वालों को भी खुशामदीद कहते हैं। अब चलते हैं सिंध के शहर शिकारपुर। शिकारपुर के इस्लाम में अपना तारुफ करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नियाज़ अहमद, वालिद साहब का नाम रियाज अहमद। मैं दरस निज़ामी में 1st ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी बिन शाहिद इकबाल है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना सखर के दर्जे साबिया यानी कि 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ज़िला कश्मीर के शहर गुड्डू से है। माशाल्लाह जी। अगले भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जवाद अहमद बिन अब्दुल मजीद है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना सखर के दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ शिकारपुर से है। माशाल्लाह। चले जनाब, शिकारपुर की टीम का तारुफ भी हमने हासिल कर लिया है। नाजरीन, अब वक्त हुआ है, कल एक सवाल आपसे किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। देखते हैं सवाल क्या था, जवाब क्या था और तोहफा आज किसको जा रहा है। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल किया गया था वो ये था कि पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई। तो इसका जवाब है 5 और हमारे पास जो नाम है उनमें मोहम्मद अशफाक अत्तारी झंग, उसैद रज़ा अत्तारी रावलपिंडी, मोहम्मद बिलाल अत्तारी मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद अली अत्तारी ऊस शरीफ, बिनते अमीन अत्तारिया पाकपतन, राव अशरफ अत्तारी, हसन कासिम बिनते मोहम्मद यूनुस अत्तारिया, उम्मे रज़ा, मोहम्मद सालेह लड़काना, मोहम्मद शहजाद, गुलाम यासीन चिश्ती बोरेवाला। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। उसैद रज़ा अत्तारी रावलपिंडी, आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ज़वजल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। जी जनाब, सवाल आज का जो क्विज एप्लीकेशन पर लाइव किया जा रहा है, आप अगर अब तक क्विज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सके तो डाउनलोड कर लें। क्विज एप्लीकेशन का नाम है ज़ैनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन। ऐप स्टोर पर भी मौजूद है, प्ले स्टोर पर भी मौजूद है। रोजाना एक सवाल, उसके 4 ऑप्शन, सही जवाब दीजिए, अपनी आईडी सेव कीजिए, हो सकता है तोहफा आज का आपको मिल जाए। आज का सवाल क्या है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर लिखी गई किताब अश्शिफा बितारीफी हुकूकिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ कौन है? 4 राइटर्स के नाम हैं, इमाम बुखारी, इमाम सुयूती, काजी इयाज मालिकी या हजरत हस्सान बिन साबित। इन चारों में से कोई एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। सही जवाब दीजिए, अपनी आईडी सेव रखिए, फिर इंशाअल्लाह सिलसिले के आखिर में बताएंगे कि किन 5 आईडीज को आज तोहफे जा रहे हैं। एक सवाल हम करेंगे जिसका जवाब आपने SMS के जरिए देना है। सवाल यह है कि हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को क्या कहते हैं? हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपने देना है इंशाअल्लाह SMS के जरिए। फिर इंशाअल्लाह सिलसिले के आखिर में हम बताएंगे कि किन खुश नसीबों को तोहफा जा रहा है। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, 1500वां जश्न विलादत, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। पहला राउंड शुरू करेंगे जिसका नाम है इल्म नूर है। वैसे हमारे सेगमेंट में 5-5 सवाल होते हैं, मगर चूंकि आज 3 टीमें हैं तो 3-3 सवाल होंगे। पहला सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से, शरीयत से क्या मुराद है? जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है, आ गया शरीयत से मुराद रहमानिर्रहीम, शरीयत से मुराद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अक़वाल व अफ़आल जो मुजतहिदीन पर ज़ाहिर हुए।
शरीयत से मुराद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वो अक़वाल व अफ़आल हैं जो मुज्तहिदीन के सामने जाहिर हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए तरीकत से क्या मुराद है? वॉरबर्टन वालों से सवाल है। शरीयत और तरीकत की तारीफ आज सुन लीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़त से मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अखलाक़ व अहवाल जो राह सलूक तय करने वालों पर ज़ाहिर हुए। क्या बात है। तरीकत से मुराद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के वो अखलाक व अहवाल हैं जो राह सलूक तय करने वालों पर वाज़े हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शिकारपुर वालों की बारी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु किस कसरत से कुरान पाक की तिलावत किया करते थे? मनकूल है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कसरत तिलावत कुरान पाक करने के सबब उनके दो मसहफ़ शरीफ शहीद हो गए थे। इतनी तिलावत करते थे कि दो मसहफ यानी दो कुरान पाक की किताबें यूं समझ लें वो शहीद हो गईं। अल्लाह अकबर। आप कतई जन्नती होकर भी इतनी तिलावत करते हैं। बल्कि हजरत उस्मान गनी तो वो हैं कि जिनकी शहादत के वक्त भी आप तिलावत कर रहे थे। तो गौर करें उनको कुरान से कितनी मोहब्बत थी। अब मैं और आप जो कुरान नहीं पढ़ते उन्हें गौर करना चाहिए कि वो कसरत से कुरान पढ़ा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हब्लुल्लाह यानी अल्लाह पाक की रस्सी से क्या मुराद है? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हब्लुल्लाह से मुराद या तो कुरान मजीद है या फिर सुन्नत मुबारका है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल कुरान हब्लुल्लाहिल मतीन यानी कुरान मजीद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मजबूत रस्सी है। जी हब्लुल्लाह यानी अल्लाह पाक की रस्सी से मुराद या तो दीन इस्लाम है या कुरान मजीद है। जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है अल कुरान हब्लुल्लाहिल मतीन यानी कुरान पाक अल्लाह पाक की मजबूत रस्सी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम नूर क्यों रखा? वॉरबर्टन वालों से सवाल है। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। कहती है दुनिया अमीर अहले सुन्नत को सलाम और मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत को सलाम। अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नूर इसलिए रखा कि आपके ज़रिए लोग हिदायत हासिल करते हैं जिस तरह अंधेरे में रोशनी के ज़रिए रास्ते को तलाश किया जाता है। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हिदायत हासिल की जाती है जिस तरह अंधेरे में रोशनी के ज़रिए रास्ता तलाश किया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शिकारपुर वालों से सवाल है। वाज की तारीफ बताएं। वाज ऐसी डांट डपट को कहते हैं जिसमें डराना पाया जाए। और इमाम खलील नावी फरमाते हैं कि वाज खैर की ऐसी बात याद दिलाने को कहते हैं जिनसे दिल नरम पड़ जाए। और ये भी कहा गया है कि वाज ऐसी बात की तरफ रहनुमाई करने को कहते हैं जो बतरीका रग़बत और डर इस्लाह की तरफ बुलाए। क्या खूबसूरत जवाब दिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीन सवाल तो हो गए हैं मगर अब जो सवाल हैं वो इनके सिलेबस से हटकर हैं और इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। देखते जनाब गुजरांवाला वाले इन 6 बॉक्सेस में से कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं? दिखाइए जनाब। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया किराम या जनरल नॉलेज। कोई भी सवाल आप एक सवाल का आपको मौका मिलेगा। सवाल बताइए किस टॉपिक से हम आपसे पूछें? कुरान पाक। कुरान पाक। चले जनाब। कुरान पाक से क्या सवाल आ रहा है? उम्मुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है?
آپ چاہیں تو ہم آپ کو 3 آپشن بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو یہاں موجود حاضرین میں سے کسی سے مدد لے لیں اور چاہیں تو وداؤٹ مدد خود ہی جواب دے دیں. آپشن دکھائیے جناب. سورہ اخلاص, سورہ یاسین یا سورہ فاتحہ. کوئی بھی اشارہ نہ کریں یہاں پر پلیز. سورہ فاتحہ کو. ان کا کہنا ہے سورہ فاتحہ. ام القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ درست جواب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے وار بٹن والوں کی. کون سا ٹاپک سلیکٹ کریں گے؟ قرآن پاک. قرآن پاک. چلیں جناب, قرآن پاک ہی سے سوال چاہیے انہیں بھی. پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ آپشن دیجئے جناب. تین آپشن دیے جائیں گے. دیکھیں اب ان آپشنز میں آپ کیا سلیکٹ کرتے ہیں. 6 ماہ, 3 ماہ یا 8 ماہ کا فرق تھا. پہلی اور دوسری وحی میں کتنا فرق تھا؟ کتنے دنوں کا وقفہ تھا؟ جلدی کریں گے آپ, سیکنڈ چلا دیجئے. 3 ماہ, 6 ماہ یا 8 ماہ؟ فوری جواب دے دے, ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. 3 ماہ. ان کا کہنا ہے 3 ماہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, 6 ماہ کا وقفہ تھا. چلے جناب, اب باری ہے شکارپور والوں کی. یاد رہے یہ سارے کوسچن وداؤٹ سلیبس ہیں, کسی کے نصیب میں کوئی بھی آ سکتے ہیں. جی پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان پھر قرآن پاک. چلے جناب, سبحان اللہ, دامن قرآن تھام کے رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے. قرآن پاک انشاءاللہ آپ اگر کوئی ٹاپک چینج کر سکتے ہیں. انہوں نے اس میں 2 ہی تیار کیے تھے قرآن پاک کے. اگر آپ کے لیے کوئی اور آپشن لے لیں آپ. انبیاء کرام. انبیاء کرام, جزاک اللہ. کل سے بھائی تینوں ہو سکتا ہے, تینوں ایک ہی چیز پوچھ لیں, آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت واقعہ اصحاب فیل کے کتنے دن بعد ہوئی؟ یہ تو بڑا مشہور ہے ماشاءاللہ. آپ چاہیں تو آپشن لے لیں, چاہیں تو آپشن بھی لے سکتے ہیں, چاہیں تو یہاں کسی اسلامی بھائی سے مدد بھی لے سکتے ہیں. آپشن دے دیں. آپشن دے دے بھائی, توڑا اعتماد نہیں ہے انہوں نے. چلیں جناب, 55 دن, 30 دن یا 13 دن؟ 55 دن. 55 دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب, پہلا سیگمنٹ یہاں تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب یہاں موجود حاضرین کی باری ہے اور ماشاءاللہ تاجران بھی نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کو بھی مرحبا کہتے ہیں جو تشریف لائے ہیں. جی شفیق بھائی سوال کیجئے. اچھا جی, ہمارے تاجران بھی آئے ہوئے ہیں تو پہلا آسان سوال کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر کا اور اسود کا الگ الگ معنی کریں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. چلیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجر سے مراد پتھر اور اسود سے مراد کالا, تو حجر اسود کالا پتھر. ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ اور مبارک پانی کا مجموعہ دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کیا حجر اسود شروع سے کالا تھا جب وہ جنت سے آیا تھا؟ یہ کون بتائے گا؟ جی جب جنت سے آئے وائٹ تھا بالکل, اس کو چوم کے نا پھر ہم نے بلیک کر لیا. وہ ہمارے گناہ اپنے اندر ایک ساؤٹ کر لیتا ہے. ہاں, چوم کے بلیک نہیں ہوا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے گناہ جو تھے نا
اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں اس کو کالا ہو گیا. یہ مومنین کے مسلمانوں کے گناہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا. ورنہ یہ جب جنت سے جنتی پتھر آیا تھا یہ اسود نہیں تھا, یہ ابیت تھا, یہ وائٹ پتھر تھا. ماشاءاللہ تحفہ پیش کریں. ان کو انشاءاللہ عز و جل غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. اس پر مشتمل کتاب غیبت کی تواکاریاں 505 صفحات پر مشتمل ہے, یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ناظرین یہ کتاب ون آف دا امیزنگ بک ہے, اس کو حاصل کیجئے اور اس سے ذریعے علم دین حاصل کیجئے. ماشاءاللہ. چلے جناب, سوال بھی ہو رہے ہیں, جواب بھی مل رہے ہیں, علم دین بھی سیکھ رہے ہیں. کال شامل کرتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی چلیں, ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جس کے سینے میں سزا سینہ وہی نور ہے. 6 نمبر ہیں شکارپور کے, 6 نمبر ہیں گجرانوالا والوں کے, 4 نمبر ہیں واربرٹن کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے, مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے. اب ماشاءاللہ تینوں ٹیموں سے سوال ہوں گے اور 3 اشعار پوچھے جائیں گے. باری ہے گجرانوالا والوں کی. جو ملا جس کو ملا تم سے ملا, عرفان علم و ارما فضانو علم و عرفان فضان آمنہ. دین و ایمان علم و عرفان آمنہ. غلطی ہو گئی ہے جناب آپ سے. کوشش بڑی کی آپ نے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل یہ منقبت تھی. اب باری ہے ہمارے واربرٹن والوں کی. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے, سارے اصحاب نبی ہیں تارے امت کے لیے. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق, ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. جواب درست دے دیا ہے. طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا, طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا, نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا, نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا, طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا, نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا, نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. پھر باری ہے ہمارے گجرانوالا والوں کی. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے, آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا, آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, تم محمد کی بنی ماں آمنہ, کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, تم محمد کی بنی ماں آمنہ. جواب درست دے دیا ہے. کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, تم محمد کی بنی ماں آمنہ, تم محمد کی بنی ماں آمنہ.
चमनिस्ताने नबूवत की बहारे अव्वल। चमनिस्तान नबूवत की बहार अव्वल, गुलशन दी के बने पहले गुले तर सिद्दीक। गुलशने दी के बने पहले गुले तर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, ये तीन शेर दो तो हो गए। अब तीसरा शेर वो होगा जिसमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, कोई गड़बड़ नहीं करनी, वो पढ़ना है और उसमें हम आपको ऑप्शन भी देंगे। पहला शेर दिखाइए हमारे गुजरांवाला वालों के लिए, बड़ा मशहूर शेर है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। 3 ऑप्शन है। जमाना तारीख हो रहा है, महर कब से निकाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर से कब निकाब में है। कौन सा दुरुस्त है बताएंगे और फिर नातवा तर्ज में सुनाएंगे। 5 सेकंड है। दूसरा वाला कह रहे हैं जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है, ज़माना तारीख हो रहा है, ज़माना तारीख हो रहा है कि मेरे कब से निकाब में है। दो पर्दा दिखा दो चेहरा। हमारी है वार बटन वालों की और बड़ा कमाल का शेर है। एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा। 3 ऑप्शन है आपके सामने। रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। कितना वकार रखती हैं अल्लाह अकबर एड़ियां। रखती हैं वकार कितना अल्लाह अकबर एड़ियां। बड़े करीब हैं तीनों, एग्जैक्टली बताना है। स्क्रीन पर दिखाइए रखती हैं दोबारा। कितना वकार अल्लाह अकबर एरिया। पहले ऑप्शन की तरफ गए हैं और यही दुरुस्त है। रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक ठोकर में ओहद का ज़लज़ला जाता रहा। एक ठोकर में ओहद का ज़लज़ला जाता रहा। रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। शिकारपुर वालों की बारी है। सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर। 3 ऑप्शन हैं। तुम्हें आए जब नजर रोज़ाए अनवर मदीने में। तुम्हें नजर आए जब रोज़ाए अनवर मदीने में। तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में। मफहूम तो तीनों से पूरा हो जाता है मगर सवाल जवाब एक ही दुरुस्त है। स्क्रीन पर दिखाइए, जल्दी करेंगे, 4 सेकंड रह गए हैं, जल्दी करें। पहला कह रहे हैं तुम्हें आए जब नजर रोज़ाए अनवर मदीने में। दोनों टीमों से शिकारपुर वाले आगे जा रहे थे मगर लगता है सफर साथ ही करना है, इनसे भी गलती हो गई है। तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में। तीसरा ऑप्शन ठीक था, गलती हो गई है। बहरहाल इल्तिजा बड़ी प्यारी है तो मदीने जाने वालों से मिलकर हम सब अर्ज कर देते हैं इंशाअल्लाह। मदीने में मैं फिर
सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, अब बारी है यहाँ मौजूद हाजरीन की। देखें आप में से कौन शेर सुनाता है। पहला शेर सुनाइए आला हजरत का। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। कौन है जो शेर पूरा करेगा? करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद महद तारी है। इसका ये जवाब है, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और बड़े खजाने। बताओ फिर ए मुफलिसों क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीम ऐसा मिला के जिसके। इस शेर को समझ लेना तो फिर सुनने में मजा और आ जाएगा। दुनिया में क्या होता है कि कुछ लोग बड़े सखी होते हैं, हाथ खुला होता है मगर खजाने भरे हुए नहीं होते हैं। बांटते खत्म हो जाता है। कहते आप में से भी कहीं होंगे यार मेरा दिल बहुत चाहता है मैं खूब बांटूं, मगर है नहीं। तो हाथ खुला बहुत सौ का होता है, खजाना खाली होता है। कुछ वो होते जिनके पास खजाना बहुत बड़ा होता है, उनका हाथ खुला नहीं होता है। पैसे बहुत है, बांटने में जान जाती है। आला हज़रत कहते हैं गुलामों तुम्हें टेंशन क्या है? तुम्हें तो अल्लाह ने ऐसा करीम ऐसे प्यारे आका दिए हैं जिनका खजाना भी भरा है और हाथ भी खुले हैं। फिर बताओ ए मुफलिसों फिर क्यों घबरा रहे हो, फिर दिल इस तरह में क्यों है? क्योंकि एक और जगह फरमा दिया ना कि करीम कैसे हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। तो ये नबी पाक की वो शान बयान हो रही है कि करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ मुफलिसों के अब ताजिर इस्लामी भाइयों से चले आसान शेर सुनना चाहूंगा। बड़ा मशहूर शेर है जो बच्चे बच्चे को याद होता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। चलें ताजिरों में से किसी से ले लें, ये तो बड़ा मशहूर शेर है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अपना नाम भी बताएंगे, कहाँ से आए भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं औरंगी टाउन वहीदिया मस्जिद से आया हूँ माशाअल्लाह, और वहाँ का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अरे वाह भाई और हाजी मुश्ताक मरहूम अत्तार कादरी का मैं शागिर्दों में से भी। अरे वाह भाई वाह। चले फिर अब शेर भी सुना दे फिर। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी। सबसे पाला हमारा नबी।
माशाअल्लाह इनको इंशाअल्लाह ज़वजल एक बेहतरीन किताब जिसमें वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, फैज़ान अज़ान, नमाज का तरीका, मुसाफिर की नमाज और नमाज क़ज़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, बनाम नमाज के अहकाम, ये इनको किताब तोहफे में दी जा रही है। मदनी चैनल के नाजरीन आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और मकतबतुल मदीना से 690 रुपए में आप इसको हासिल भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह। जनाब वक्त हुआ है नाजरीन, अब स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले क्या कॉल्स रेडी हैं? कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं सैयद गुलाम कादिर अत्तारी बूढ़े वाला से माशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्या बात है ज़हनी आज़माइश सीजन 17 की, इल्म दीन का खजाना है अब्दुल हबीब अंकल, शेर मुकम्मल कर दे। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, दावत इस्लामी जिंदाबाद, जज़ाकल्लाहु खैरा। चले ऐसा भी ये शेर तो मुकम्मल आपने करना है, हम तो तोहफा देते हैं शेर मुकम्मल करने वाले को, ये आपको क्या तोहफा दें? आपके अब्बू को अपने काफिले में भेज देना अगर मैंने आपके लिए शेर मुकम्मल कर दिया, ठीक है? कोशिश करके चले आपका वक्त शुरू होता है अब। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। अगली कॉल दीजिएगा। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तो सजीव से, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगता है, जज़ाकल्लाह। आइए दिखाइए स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब तीनों टीमें बराबर हो गई हैं नाजरीन, ऊपर गई नीचे गई फिर बराबर हो गई, 10 10 और 10 नंबर है। अगला सेगमेंट जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। आइए मिलकर बड़े प्यारे नारे जो अमीर अहले सुन्नत हमें अता फरमाए हैं, इन नारों की आदत डालिए, अपने बच्चों से भी कहलवाइए ताकि रगो पै में ये शामिल हो जाए। क्या? मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा औलिया का भी सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। बाद आपके हरगिज़ ना आएगा नबी नया, बाद आपके हरगिज़ ना आएगा नबी नया, वल्लाह ईमान है मेरा, वल्लाह ईमान है मेरा, ए आखिरी नबी, वल्लाह ईमान है मेरा, ए आखिरी नबी, वल्लाह ईमान है मेरा, ए आखिरी नबी, वल्लाह ईमान है मेरा, ए आखिरी नबी। माशाअल्लाह। सवाल गुजरांवाला वालों से है, क्या अकीदा खत्म नबूवत जरूरियात दीन में से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, अक़ीदा ख़त्म नबूवत ज़रूरियात दीन में से है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूरी है, उसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और जो इसका इनकार करे या जर्रा बराबर भी शक करे वो इस्लाम से खारिज, काफिरो, मुर्तद है। याद रखिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खत्मे नबूवत के मुनकिर का हुक्म बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुरान पाक की नस्से क़तई मौजूद है और अहदीस तवातुर तक पहुंची हुई हैं और इस बात पर उम्मत का क़तई यकीनी इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद आपके ज़माने में या आपके बाद क़यामत कायम होने तक किसी को नबूवत मिलना मुहाल यानी नामुमकिन है, और जो कोई आपके बाद किसी और को नबूवत मिलना जायज़ समझे वो काफिर, मुर्तद और दायरे इस्लाम से खारिज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद नबी के आने का दावा करे, क्या उससे दलील मांगी जा सकती है? शिकारपुर वालों से सवाल है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि जो कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबी के आने का दावा करे तो उससे दलील नहीं मांगी जाएगी, बल्कि उस शख्स के अकीदे का इनकार किया जाएगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा चुके हैं ला नबी या बादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत सेगमेंट अकीदा खत्म नबूवत की मजीद वजाहत जिससे हमें मिलती है। अल्लाह करीम हमें इसी अकीदे पर इस्तिकामत अता फरमाए और इसी अकीदे पर ईमान और आफियत के साथ मौत नसीब फरमाए। नाज़रीन, वक्त हुआ है, एक बार फिर हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे, मगर पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। गुलाम इलियास सत्तारी स्कर्दू बल्तिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह करीम, हाजी साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बिलखुसूस आज टीमों के बैठने का अंदाज बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक में इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब। अब चलते हैं नाज़रीन, एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। 3 सेगमेंट पूरे हो गए हैं और तीनों टीमों के 12, 12 और 12 नंबर हैं। अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब आज तीनों टीमों ने एक एक बॉक्स खोलना है, तो जरा सोच समझ के अपनी टीम से इस्लामी भाई को भेजिएगा। बारी है पहले गुजरांवाला वालों की। गुजरांवाला से इस्लामी भाई आए, इन 15 में से कोई भी बॉक्स खोलेंगे उसके अंदर कोई आपके लिए यूं समझिए कि कोई उन्वान होगा जिसके आपने 15 नाम बताने हैं। जनाब गुजरांवाला से मुजतबा आए हैं। मुजतबा भाई कौन सा नंबर खोलेंगे? 6 नंबर। ये 6 नंबर किस निस्बत से? छठी की निस्बत से। ख्वाजा साहब की छठी की निस्बत से। क्या बात है जनाब, कोई ना कोई फार्मूला तो जहन में होगा ना। क्या निकला इसके अंदर से? कुरान पाक की 15 सूरतों के नाम। क्या बात है, लगता है ख्वाजा साहब की बरकतें नसीब हो गई हैं। 15 सूरतें बयान कर दे भाई। चले हैं, हाफिज साहब के लिए तो मुश्किल नहीं है, बाकी लोगों के लिए मुश्किल होती हैं। जी माइक की आप ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा, सूरतुल आराफ, सूरतुल अनआम, सूरतुल तौबा, सूरतुल राद, सूरतुल हूद, सूरतुल यूनुस, सूरतुल यूसुफ, सूरतुल इब्राहीम, सूरतुल यासीन, सूरतुल रहमान, सूरतुल मोहम्मद, सूरतुल नास। हो गई पूरी? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भाई, अब आ जाएं वॉर बटन के इस्लामी भाई, आ जाएं। चलें जनाब, वॉर बटन ने भी भेजा है अपने प्यारे से इस्लामी भाई को। कौन सा नंबर? 5 नंबर। ये 5 नंबर किस निस्बत से खोल रहे हैं? पंजतन पाक की निस्बत है। क्या बात है। चले, क्या आ गया इसमें? 15 अंबिया किराम के नाम। चले 15 अंबिया किराम के नाम। ये भी इतना मुश्किल नहीं है। देखें वक्त के अंदर बताते कि नहीं। वक्त शुरू होता है अब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14 हुए। एक और नाम बताएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जनाब पूरे हो गए? जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब शिकारपुर वाले आ जाएं। शिकारपुर के इस्लामी भाई देखें क्या नंबर सेलेक्ट करते हैं। जी इन्होंने 7 नंबर। कोई निस्बत है 7 नंबर की? हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद 7 थे। अच्छा माशाल्लाह। चले जनाब। ओए होए होए, ये इनको क्या पूछा इस गया इसमें? 15 अराकीन शूरा के नाम। 15 अराकीन शूरा के नाम। चले जनाब, बताइए जनाब। हाजी इमरान अत्तारी, हाजी शाहिद अत्तारी, हाजी अमीन अत्तारी, हाजी अमीन अत्तारी मदनी काफिला, हाजी शाहिद अत्तारी मदनी, हाजी अब्दुल्ला बीब, हाजी सैयद लुकमान अत्तारी, हाजी इब्राहिम अत्तारी, हाजी मोहम्मद अली अत्तारी, हाजी कारिया अयाज अत्तारी, हाजी याफूर अत्तारी, हाजी फारूक जिलानी, हाजी रफ़ी अत्तारी, हाजी मंसूर अत्तारी, हाजी अजहर अत्तारी, हाजी अजहर अत्तारी, हाजी
یہ تو لگتا ہے پورے 28 29 سارے بتا دیں گے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد بھائی, ماشاءاللہ. اس واقعی لگتا ہے کہ آخری سوچ کے تیاری کر کے آئے ہیں کہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں اتنے سارے اسلامی بھائی آئے ہیں, اتنے تاجران آئے ہیں, ان سے ان کی آئٹموں کے نام پوچھو تو 15 آئٹموں کے نام بھی یاد ہوں گے. کوئی الیکٹرانک کی آئٹم یاد رکھا ہوگا, کسی نے اپنی دکان کی آئٹم یاد رکھی ہوں گی, یہ بھی باتیں یاد ہونی چاہیے نا. چلے میں 15 نہیں پوچھتا ہوں, شفیق بھائی جائیے ان کے پاس. تاجر اسلامی بھائیوں میں سے کوئی صاحب 5 صحابہ کے نام بتا دیں, پنجتن پاک کی نسبت سے 5 صحابہ کے نام. کون بتائے گا؟ چلیں اپنا نام بھی بتائیں, کہاں سے آئے ہیں یہ بھی بتائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد آدم ہے, میں طارق روڈ نائب صدر ہوں. اچھا ماشاءاللہ, مرحبا کہتے ہیں آپ کو, آپ تشریف لائے, جزاک اللہ. جزاک اللہ, آپ کا بھی شکریہ. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ 5 پورے کر دیے. اور کمال پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے, یہ 5 کے 5 عشرہ مبشرہ میں بھی موجود ہیں. سبحان اللہ, تحفہ پیش کریں انہیں. ان کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جائیں گے ماشاءاللہ. آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ آتے رہا کریں. سارے تاجر اسلام بھائی, فیضان مدینہ آپ کا ہے, یہاں ہفتہ وار اجتماع میں بھی, مدنی مذاکروں میں بھی آتے رہا کریں. ماشاءاللہ جی, تشریف رکھیں. آئیے تمام اسلام بھائی کا تشریف لے آئیں, ابھی نعت خوانی کریں گے اور انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ لیں گے. باقی سیگمنٹ اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ نیک اعمال کا پہلے جائزہ لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی. اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھیا سن لیے, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین, اب انشاءاللہ مل کر نعت شریف میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के गए फैसले ये बड़े करम के गए फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुझे बुला ले बहुत उदास हूँ मैं मदीने मुझे को बुला ले बहुत उदास हूँ मैं मुझे को बुला ले बहुत उदास हूँ मैं मदीने मुझे को बुला ले बहुत उदास हूँ मैं आका मदीने मुझे को बुला ले बहुत उदास हूँ मैं गमे जहाँ से बचा ले बहुत उदास हूँ मैं गमे जहाँ से बचा ले बहुत उदास हूँ मैं करम हुजूर हो ऐसा के सारा घर आए आका करम हुजूर हो ऐसा के सारा घर आए मेरा सवाल निभा ले बहुत उदास हूँ मैं मेरा सवाल निभा ले बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था आका मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था हुजूर फिर से बुला ले बहुत उदास हूँ मैं हुजूर फिर से बुला ले बहुत उदास हूँ मैं हुजूर फिर से बुला ले बहुत उदास हूँ मैं खुशी चाहिए तो मदीने चलो जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो
گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے دل بھی صد سے کیا بار دی اپنی جان دل بھی صد سے کیا بار دی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باتیں صبا لے جاؤ اڑا کر ان کے کوچے میں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں آقا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے لگی ہے روضہ پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں بڑی پناہ میں آیا جو آیا طیبہ میرا بڑی پناہ میں آیا جو آیا طیبہ
आसिया तुम हो, वकील मुजरिमा तुम हो, बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। रहमे हबीब दावर तुम पर सलाम हरदम, इस बेकसो हज़ीं पर जो कुछ गुजर रही है। जाहिर है सब वो तुम पर सलाम हरदम, अपने गदाए कर की लीजिए खबर खबारा, कीजिए करम हसन पर तुम पर सलाम हरदम। गिरा हुआ आइए नाज़रीन कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद इस्लाम अत्तारी गुजरावाला से अर्ज गुजार हूँ। माशा अल्लाह मदनी चैनल का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अब्दुल हबीब भाई, आज आपसे एक छोटा सा ज़हनी आजमाइश है। ऐसा शेर सुनाइए जिसके दूसरे मिसरे में लफ्ज़ चैन आता हो, और मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब बख्शिश और हाज़री मदीना की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। चैन आता हो, अच्छा। दमे इस्तराब मुझको जो ख्याल यार आए, मेरे दिल को चैन आए तो उसे करार आए। नातख़्वां इस्लाम ने मदद की है मेरी, ठीक है ना। अगली कॉल दे दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा तारी है। मैं चाइना सर्च कर रहा हूँ। मेरी उम्र 8 साल है। अब्दुल हबीब अंकल, हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, नेकियों वाली, आफियत वाली, सेहत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे और मेरे वालिदैन के लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको भी हम सबको भी मदीने पाक की बार बार हाज़री अता फरमाए। एक और कॉल लेते हैं इस सिलसिले में। मोहम्मद मुनीब रहमान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 अपनी धूमें मचा रहा है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी से सवाल ये है कि माशाल्लाह आप लाहौर कब तशरीफ़ ला रहे हैं? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लाहौर आने का जी तो बार बार चाहता है, क्योंकि हमारे दाता साहब वहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, वैसे तो ज़हनी आज़माइश के सिलसिला जब दिसंबर में इख्तिताम पजीर हो रहा होगा तो उस वक्त तो इंशाल्लाह उम्मीद दाता हुजूर हाज़री होगी। इससे पहले भी बुलावा हो गया तो इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉल देते। मैं नूरेवाली से अर्ज कर रही हूँ। ज़हनी आज़माइश सिलसिला बहुत प्यारा है, हम बहुत शौक से देखते हैं। हमारे इल्म में बहुत इजाफा होता है। इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चलिए जनाब, वक्त हुआ है आज की हदीस जो हमने कल बयान की थी, वो इंशाल्लाह बच्चों ने वीडियोस बना के इस्लामी भाइयों ने भी भेजी होगी। कुछ वीडियोस देखते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह आज की हदीस दोबारा कल के लिए बयान करेंगे, जिसकी वीडियोस आप कल हमें भेजेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी और तुम आखिरी उम्मत हो। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। वाला रसूलुल्लाह, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ
नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। माशाअल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों ने माशाल्लाह, और कितनी प्यारी हदीस। देखिए, मैं गौर कर रहा था कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर ख़त्म नबूवत के हवाले से हदीसें याद हो रही हैं और यही इंशाअल्लाह अक़ीदे को मज़ीद मजबूत करेंगी। आइए, वक्त हुआ आज की हदीस का। इस हदीस की स्क्रीन पर जब हम दिखाएंगे तो आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा ताकि इसको याद भी कर ले और इसकी वीडियोज़ बना के भेजें। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 3 बार इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ। मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ। मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। इंशाअल्लाह इस हदीस को याद भी कर लें। अहादीस याद करने के फ़ज़ाइल अलग से हैं और बच्चों से, या आप खुद भी चाहें जो इस्लामी भाई हैं, अपनी वीडियोज़ हमें भेजें। इंशाअल्लाह हम इन वीडियोज़ को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, इनमें से सेलेक्टेड इंशाअल्लाह हम इसको चलाएंगे। नाज़रीन, अब आखिरी 2 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे इन 3 टीमों में से कौन सी टीम आगे जाएगी। पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। जनाब, कमाल यह है कि तीनों टीमें बिल्कुल बराबर है, 14 नंबर ईच, सबके 14 नंबर हैं। अब 2 सेगमेंट फैसला कर देंगे कौन सी टीम आगे जा रही है और किन 2 टीमों को आज अलविदा कहना है। सेगमेंट का नाम है कुरानी मालूमात। वालों से सवाल करेंगे वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कसरत से अपना जिक्र करने की तालीम दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो। ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो। बल्कि हदीसों में यह मजमून मिलता है कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किसी के घर में दाखिल होने के आदाब के मुतालिक हमारी कुरान हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में दाखिल ना हो यहाँ तक कि इजाज़त न ले लो और सलाम न कर लो। ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक इजाजत ना ले लो और उनके साकिनों पर सलाम न कर लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। घर में दाखिल होते वक्त क्या करना चाहिए? कुरान क्या रहनुमाई फरमाता है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फ़ाइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, कि जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो। जब किसी घर में जाओ तो अपनों को सलाम करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। गुजरांवाला वालों को पहचानना है ये कुरान का कौन सा वाकया है। व्यूअर्स भी और हाजरीन भी देखें इन पिक्चर्स के जरिए कि आप किसी कुरान के वाकये की तरफ पहुंच सकते हैं। जी, ऐसा भी है और कुछ पानी भी है। इससे क्या मुराद है? पच्चीस सेकंड भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसमान से पानी का जारी होना, ये पारा 16 सूरत ताहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मैदान ती वाला ये वाकया है जहां बनी इसराइल के लोग एक तरह से कैद हो गए थे। आपने लाठी अपना आसा मारा और 12 चश्मे जारी हुए। बड़ा यूनिक वाकया है, कुरान में ज़रूर पढ़िए। मगर आपने जो बताया और हमारे पास जो सिलेबस में है पारा 1 सूरह बकरा यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने सूरह ताहा बताया है।
क्या? अच्छा, हमारी टीम इसको देखकर अभी जवाब देती है कि हमारे से तो मिस्टेक नहीं हुई। जब तक हम इंशाअल्लाह जी ठीक है, हमारी तरफ से तो सूरह बकरा पारा 1 में है। आपने क्या बताया? सूरह ताहा में। जी जनाब, चलें, लेकिन इनको सिलेबस दिया गया होगा ना कि हम कौन सा, इंशाल्लाह हमारी टीम वहां भी देख लेगी। जी जनाब, जब तक हम वॉर बटन वालों की तरफ चले जाए, ठीक है, आपका 2 में से 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा, ये टीम सेलेक्ट कर रही है। चलिए जनाब, वॉर बटन वालों की बारी, इनको दिखाएं कुरान पाक का कौन सा वाकया। 12,000 और आगे बंदर भी है। कैसा अजीबो गरीब ये कुरान का वाकया है। 12,000 यहूदी बंदर बन गए। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा। पारा नंबर 1 सूरह बकरा। 12,000 बंदर यहूदी हो गए। अजीबो गरीब वाकया था। मछली का शिकार करने से मना किया गया, हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना था, और फिर ये बंदर हो गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, 2 नंबर पूरे हासिल कर लिए हैं। अब चलेंगे शिकारपुर वालों की तरफ, दिखाइए जनाब। हजरत महराब मरियम पारा 3 सूरह बकरा। महराब मरियम पारा 3 सूरह आले इमरान। मेरे पास सूरह आले इमरान थी, आपने बाद में इसको ठीक किया। अच्छा, वाकया मैं बता देता हूं, ये करामत के मौजू से मुतालिक भी बड़ी शानदार दलील है कि हजरत मरियम पर महराब में किस तरह बेमौसम के फल आते थे और अल्लाह करीम ने कैसे इनको बरकतों से नवाजा था। जनाब, पहली टीम का फैसला फरमाएं कि उनके बारे में क्या हुक्म है। और अच्छा, थोड़ी देर और लगेगी। आपने पढ़ा इसको सूरह ताहा में? दोनों में मौजूद है, ये बता रहे हैं। अच्छा, अब बहरहाल नाज़रीन, अच्छा, इन्होंने सूरह बकरा कहा है सूरह आले इमरान की जगह। पारा 3, चले, इनका दुरुस्त मान रहे हैं। और आपको बताएं नाजरीन के अजायबुल कुरान गरायबुल कुरान, ये कमाल की किताब है। अगर अभी तक हासिल नहीं की तो मकतबतुल मदीना से हासिल करें। कुरानी अजीम वाकयात इसमें मौजूद हैं, और वाकयात पढ़ेंगे तो उसके सबक भी आपको इंशाअल्लाह सीखने को मिल जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबके दिलों को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए। अब नाजरीन चलते हैं एक और कॉल सिलसिले में। एक कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब अंकल, आज मैं आपको ज़हनी आजमाइश कलाम सुनाऊंगी। ज़हनी आजमाइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना साथ लाया, ज़हनी आजमाइश आया। माशाअल्लाह, चले अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम याकूब है और मैं पंजाब के शहर चीचावतनी से बात कर रहा हूँ। आपका ये प्रोग्राम जो कि बहुत ही अच्छा है और इल्म दीन का एक खजाना है, और आपसे दुआ की गुजारिश है कि मेरे वालिदैन के लिए और बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। गुजरांवाला वालों के लिए ये खबर है कि सूरह ताहा में ये वाकया नहीं है, आपसे गलती हो गई है। आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जनाब, अब स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी सेगमेंट फैसला कर देगा कौन सी टीम ने आगे जाना है। वैसे तो तीनों टीमें बराबर जा रही थी, शायद 1 नंबर से गुजरांवाला वाले पीछे हुए हैं। स्कोर बोर्ड दिखाइए और फिर हम चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ। जनाब चले, अब हम चलेंगे आखिरी सेगमेंट के लिए जिसका नाम है सफर है। एक इस्लामी भाई गुजरांवाला वाले आ जाएं, वार बटन वाले जाएं शिकारपुर वाले आ जाएं गुजरांवाला। थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया है। अब जनाब, तीनों टीमों के हर इस्लामी भाई से 5-5 सवाल, या तो सही कहना है या गलत कहना है, और ये फैसला कर देगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है। बारी है अली रजा गुजरांवाला, आप तैयार हैं? शोबुल ईमान सियासित्ता में से है। गलत। सीधे हाथ से पानी पीना सुन्नत है। सही। मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई का नाम है। जल्दी करें। हुरूफ लैन 2 हैं। सही। लाल शाहबाज कलंदर का मजार पाक पतन में है। गलत। जनाब, एक गलती गालिबन आपसे हुई है। जनाब, एक गलती हो गई है। मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई ही का नाम है। अब बारी है वॉरबर्टन के तलहा की। सूरह निसा 4थे पारे में मुकम्मल होती है। गलत। हजरत पीर मेहर अली शाह का मजार मुबारक लाहौर में है।
गलत। शैतान को कंकरिया मारने को रबी कहा जाता है। सही। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा पर इंजील नाजिल फरमाई। गलत। सूरह रहमान 21वें पारे में है। गलत। तलहा ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। तलहा ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब बारी नियाज की है जो शिकारपुर से ताल्लुक रखते हैं। हजरत हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह तआला का मजार लाहौर में है। गलत। दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज यूरोप में है। गलत। कुरान पाक में सिर्फ एक सहाबी हजरत उमर का नाम आया है। गलत। खाना काबा के नाम पर कुरान पाक की सूरत नहीं है। गलत। सही। मस्जिद खैफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है। सही। अल्लाह, मस्जिद खैफ में हजरत यूसुफ का मजार नहीं है। 2 गलतियां कर गए हैं। नियाज भाई गौर से जवाब दें, एक बार कहें सही या गलत। अब बारी असद की है। जनाब, बैते रिजवान फतेह मक्का के बाद नहीं हुई। जल्दी जवाब दें। गलत। कबालाए बख्शिश फारसी जबान का मशहूर नातिया दीवान है। सही। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की उम्र मुबारक 103 साल थी। सही। माशाअल्लाह में 9 हुरूफ हैं। सही। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सही। अल्लाह अकबर। असद भाई से काफी गलतियां हो गई हैं। 3 गलतियां कर गए हैं। अल्लाह। अब बारी जवाद अहमद शिकारपुर की है। सूरह आले इमरान में सबसे ज्यादा आयात हैं। सही। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को ऊंटनी का मौजज़ा अता किया गया था। सही। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। गलत। कायदा आखिर नमाज के फराइज में से है। सही। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के भाई हैं। सही। अल्लाह अकबर। आज क्या हो गया टीम वालों को? 3 गलतियां कर गए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जरा नंबर में देख लूं। वॉरबर्टन 23, गुजरांवाला, तीनों बराबर हो गए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। या अल्लाह, यानी तीनों टीमें बराबर हो गई हैं। और आखिरी इस्लामी भाई पर तीनों का फैसला है। कभी गलती करते हैं, कभी सही जवाब देते हैं। और ये तो हो गई ना, तीनों एक रहता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कैसे बराबर हो गया। हाँ, वॉरबर्टन के इस्लामी भाई बाकी हैं। हाँ चले, नवाज भाई की बारी बाकी है। अच्छा अच्छा, वॉरबर्टन को आगे बढ़ने का मौका है। चलें। खजूर से इफ्तार करना सुन्नत नहीं है। गलत। कसीदा नूर अरबी जबान में लिखा गया है। जल्दी करें। बाबा फरीद को गंजे बख्श कहा जाता है। गलत। सियासत हदीस की 7 मशहूर किताबों को कहा जाता है। गलत। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। वॉरबर्टन वालों ने लंबी जंप लगा दी है। नाजरीन, अल्लाह अकबर। अब बारी है गुजरावाला वालों की। शिकारपुर गुजरावाला के मुश्तबा। आप मुश्तबा कहां गए? यहां गए। अच्छा जनाब, जनाब मोहम्मद बिन ईसा इमाम तिरमिजी का नाम है। सही। हुरूफ यरमलून 6 हैं। सही। लाल शहबाज कलंदर का नाम उस्मान है। सही। हजरत सुल्तान बाहू का मजार मुबारक मुल्तान में है। गलत। तवाफ में 6 फेरे होते हैं। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बारी है जनाब शिकारपुर के मुजतबा की। अल्लाह, आपकी बारी है? उनकी बारी है। अच्छा, एक तो बड़ा मिक्स हो गया। आपका नाम क्या है? मुजतबा। हसनैन भाई हैं और आपका ताल्लुक वॉरबर्टन से। अच्छा, अल्लाह पाक ने हजरत ईसा पर इंजील नाजिल फरमाई। सही। सूरह मोमिन 18वें पारे में है। सही। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद नहीं है। सही। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 2 बार पढ़ा जाता है। सही। मौलाना हसन रजा खान हजरत आला हजरत के भाई थे। सही। गलतियां आपसे भी हुई हैं। 2 गलतियां कर गए हैं जनाब वॉरबर्टन के इस्लामी भाई। अब बारी है शिकारपुर के मोहम्मद मुद्दस्सिर की। हजरत बाउद्दीन जकरिया का मजार मुल्तान में है। सही। हुरूफ मुफरिदात 29 हैं। सही। काबा मुअज्जमा मुसलमानों का किबला अव्वल है। गलत। हजरत हमजा मैदान ओहद में शहीद नहीं हुए। सही। मलफूजात आला हजरत की तसनीफ है। गलत। जनाब आपसे भी एक गलती हुई है, लेकिन इस मुकाबले ने बड़ा कमाल का पलटा खाया और आज का मुकाबला वॉरबर्टन वाले जीत गए हैं। शिकारपुर और गुजरांवाला वालों ने बड़ी कोशिश की, मगर ये मुकाबला जाहिर है किसी एक टीम ने ही जीतना था, मगर इतना बड़ा फर्क आ जाएगा ये मेरे इल्म में नहीं था। हिम्मत में रहें, दोनों टीमें आगे आ जाएं इंशाअल्लाह। ना हो मायूस
दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको बुला लेंगे तुमको एक दिन सरवर मदीने में बुला लेंगे तुमको एक दिन सरवर मदीने में चलती नहीं मर्जी किसी की यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की मदीने वाला भी बुलवा रहा है मदीने वाला भी बुलवा रहा है। माशाल्लाह तीनों टीमों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, बिलखुसूस गुजरांवाला और शिकारपुर बड़ी अच्छी टीमें हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक ने आगे जाना होता है। नॉर्मली हमने देखा है गुजरांवाला से जब भी टीम आती है वो आगे तक जाती है। बहरहाल इनका सफ़र यहीं तक था, अगली बार और अच्छी तैयारी करके आइएगा। आज का हम इंशाल्लाह जो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड है वो तलहा को देंगे। वॉरबर्टन से तलहा माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी इनकी रही और इनको मुबारक हो। और जो दो टीमें जा रही हैं उनको इंशाल्लाह हम दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों को तोहफे पेश करेंगे। हम माशाल्लाह इदारतुल मुस्तफ़ा से आने वाले इस्लामी भाई को भी मरहबा कहेंगे, हमारी मोहब्बतों का पैगाम लेकर जाइएगा। इसी तरह माशाल्लाह दूसरे इस्लामी भाई गुजरांवाला वाले ये भी तोहफा लें। तीसरे कहाँ हैं भाई गुजरांवाला वाले? माशाल्लाह चले शिकारपुर के इस्लामी भाई भी तोहफा ले लें माशाल्लाह। जी आपके लिए मकतबतुल मदीना की तरफ से भी कुछ तोहफे आए हैं, वो भी आपको भेजे दिए जाएंगे, गिफ्ट हैम्पर है। और कहाँ हैं तीसरे इस्लामी भाई? आजा चले उनको तोहफा दे दें, ये दे दें उनको। माहनामा फैजान मदीना माशाल्लाह इस बार हमारी मजलिस माहनामा फैजान मदीना ने 12 माह के लिए आपको 12 माह के माहनामा फैजान मदीना से मौजूद हैं। 12 माह के फैजान मदीना जो है वो माहनामा रिसाला आपको तोहफे में दे रहे हैं मकतबतुल मदीना की तरफ से। और वो इस्लामी भाई जिन्होंने अब तक माहनामा फैजान मदीना सब्सक्राइब नहीं किया, स्क्रीन पर नंबर देखेंगे, हर महीने आपके घर ये रिसाला आया करेगा और बहुत सारे इल्म दीन के मदनी फूल भी इसके साथ होंगे। अपने ऑफिस अपने घर के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्क्रीन पर आप नंबर देखेंगे। तो ये सब इस्लामी भाइयों को एक एक दे दें जिनके साथ तोहफे हैं माशाल्लाह। अब आज ये तोहफा मैंने सोचा था, किसके लिए सोचा है मैं बताता हूं आपको। आज ये तोहफा मैं चाह रहा हूं कि एक मोहब्बतों का पैगाम लेकर, चूंकि माशाल्लाह गुजरांवाला से इदारतुल मुस्तफ़ा से हमारे साथ एक तालिब इल्म आए, टीम में आगे नहीं बढ़ सके, मगर हम चाहते हैं कि तोहफा उनके इदारे के लिए तोहफा हम इनको दे रहे हैं। बहरहाल ये मोहब्बतों के साथ ले जाएं और हमारी मोहब्बतों का पैगाम वहां तक पहुंचाएं। तो इदारतुल मुस्तफ़ा से आने वाले इस्लामी भाई को हम ये आज इंशाअल्लाह मारिफतुल कुरान दे रहे हैं। और आपसे गुजारिश है दावत इस्लामी, हम सब एक हैं, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, काफिलों में सफर करें, अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। चले जनाब, अब बारी है नाजरीन से जो सवाल किया गया था उसकी कुरानदाजी भी करनी है, मगर पहले हम आपसे क्विज एप्लीकेशन से जो सवाल किया गया था उसकी कुरानदाजी कर लेते हैं। आला हज़रत को सलाम कहती है दुनिया अमीर। जनाब ये किताब शिफा शरीफ जो है एक काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह तआला ने लिखी थी। आइए जनाब कुरानदाजी करते हैं कि किन खुशनसीबों को ये आईडीज मिल रही हैं, किन को इनाम जाएगा। ये 5 आईडीज हैं, नोट कर लीजिए, इनमें से आपका तोहफा आपको मिल जाएगा। वो सवाल जिसका जवाब आपने कल देना है, कल सिलसिला होने से पहले देना है। जिसकी नमाज जनाजा 3 सफों ने पढ़ी उसकी क्या फजीलत है? ये सवाल है, जिसकी नमाज जनाजा 3 सफों ने पढ़ी उसकी क्या फजीलत है, ये देख लीजिए और इसका जवाब मैसेज के जरिए दीजिएगा। नाज़रीन हम हमारी 3 दिन का गैप होगा, इतवार पीर मंगल बुध 4 दिन हम सिलसिला करते हैं। जुम्मा हफ्ता इतवार थोड़ा सा ब्रेक होता है, जुम्मा माफ कीजिएगा जुमेरात जुम्मा हफ्ता, और अब इंशाल्लाह इतवार वाले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। इतवार की रात 9 बजे किस टीम के साथ मुकाबला है आइए देखते हैं। इस्लामाबाद वर्सेस ओस्ता मोहम्मद, बलूचिस्तान की टीम का मुकाबला होगा इस्लामाबाद से। हमारी जो एक कुरानदाजी वो रह गई है वो इंशाल्लाह अगले सिलसिले में हम इंशाल्लाह उसको आपको कर लेंगे। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को जो तोहफा मिलता है 6268 6268
6268 जिनके पास है वो आ जाएं, और 6290 इन्हीं के पास है, एक नंबर से रह गया। 6290 6290 और 6268। चलें जनाब, ये हो तो यहां पर आकर तोहफा ले लें। बाकी तमाम इस्लामी भाई अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।